सत श्री अकाल। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। अज गलबात करांगे चंडीगढ़ दे विच प्रॉपर्टी टैक्स ते गारबेज कलैक्शन नूं लैके जिहड़े रेट ने वो वधाए जा रहे हैं, जिस तो बाद चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के वलों जगह जगह के उत्ते प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उन्होंने वलों कहा जा रहा है कि जिहड़े प्रॉपर्टी टैक्स और गारबेज कलैक्शन के जिहड़े रेट ने वो वधाए गए हैं, जेकर उन्होंने जल्दी तो जल्दी जिहड़ा है वो भाजपा के वलों वापस नहीं लिया जाता तो उन्होंने वलों जिहड़े संघर्ष है उन्होंने तेज किया जाएगा। सो एक तुहानूं बाइट सुणाने, उस तो बाद साडे नाल मेहमान जुड़नगे, उन्होंने नाल इस मुद्दे के उपर गलबात करांगे। टैक्स ते गारबेज कलैक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਦ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਦੇ ਆਏ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਕੱਢਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਾ ਸਕਣ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਕਢਾਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਤੇ ਨੋਟਿਸ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2,500 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4,000। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 50-50 100-100 ਗਜ ਦੇ 2-2 ਮਰਲੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਨਾੜ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ 21 ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 6 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕੱਢੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 14 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਦਿਓ ਧਰਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਮਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਮਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਸਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ
ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਰਮੇਲ ਕੇਸਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਮੇਲ ਕੇਸਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? में भाजपा ने 2014 से अपने मेयर बनाए हैं, 7-8 साल इनको हो गए हैं। मैं तो सिर्फ इनको यही कहता हूं कि ये टैक्स वाला नगर निगम है। जब से ये बने इन्होंने लगातार शहर के ऊपर टैक्स लगाए हैं, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो इनकी सांसद है वो कर्तव्य तो उनका बनता है कि वो सेंटर से ज्यादा फंड लेकर आए और यहाँ पर लोगों के ऊपर बोझ ना डले टैक्स का। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इनकी सांसद लगातार विफल रही है सेंटर से पैसा लाने में, और नीचे इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिससे ये कोई यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस इकट्ठा कर सके। तो उसके सीधा इनके पास एक ही जरिया होता है कि लोगों के ऊपर टैक्स लगा दो। तो ये इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाया है, फिर पानी के दाम इन्होंने लगातार बढ़ाए हैं। आप देखिए कि जो ये टैक्स इन्होंने कॉलोनीज और गांव के घरों के ऊपर लगाए हैं, ये बहुत पहले कहा गया था कि घरों में, कॉलोनियों में और गांव में ये टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। इवन कि जब मैं एक और बात, कांग्रेस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मेरे दोस्त सौरभ जी बैठे हैं, हमने एक बात कही थी कि जो लोग विकलांग हैं और जो विडोज हैं उनके घर के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस सरकार ने जो भाजपा की है उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा जी, उनके ऊपर भी लगातार टैक्स लगा रहे हैं। तो मेरा ये कहने का है कि टैक्स लगाने की एक लिमिट होती है, कोई 1% या 1 रुपया आप लगा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से, और आप देखिए किस प्रकार से बिना नोटिस दिए पिछले 4 साल के टैक्स कॉलोनियों में भेज दिए, और दूसरे देखिए कि उनके ऊपर ब्याज लगा रहे हैं, जुर्माना लगा रहे हैं। अरे भाई आपने नोटिस दिया नहीं, उनको पता ही नहीं हमने टैक्स देना है, कितना देना है, फिर 4 साल का उसके ऊपर ब्याज लगा के भेज रहे हो। ये तो तानाशाही है। तो मेरा मतलब अगर चंडीगढ़ के लोगों को राहत देनी है, गरीब लोगों को, तो इस टैक्स को माफ करना पड़ेगा। और दूसरा जो पानी के रेट की बात है, पानी पूरे हिंदुस्तान में इतना महंगा पानी शायद चंडीगढ़ में आज भाजपा के राज में लोगों को मिल रहा है, इससे भी निजात दिलानी पड़ेगी। और गार्बेज के जो इन्होंने कलेक्शन के वो भी पानी के बिल में जोड़कर भेज रहे हैं। तो ये मतलब हम तो इसको बोलते हैं महंगाई वाली सरकार। प्रदर्शन तो इन्होंने भी हमारे खिलाफ किए उस वक्त जब हमारी सरकार थी, लेकिन आज सही मायने में अगर कोई महंगाई डायन खाप जाता है तो वो इस सरकार में वो बात बिल्कुल सही सिद्ध हो रही है कि महंगाई की मार से आज लोगों के पास ना तो उनकी जेब में पैसा है और ना उनके पास टैक्स भरने के लिए पैसे हैं। लेकिन ये सरकार गरीबों की नहीं है, सिर्फ 2 बड़े राजनेता और बड़े घराने के 2 लोग पूरे देश को चलाना चाहते हैं, उन्हीं की सब पाइपलाइन है, उन्हीं का सब सिस्टम चल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस टैक्स को माफ करना चाहिए, गरीब लोगों को राहत देनी चाहिए, यही मेरा कहना है। जी ठीक है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं दमनप्रीत बादल जी। बादल जी, मेरा सवाल आपसे है कि मेयर बनने से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ में शिक्षा की बात की जा रही थी, पानी की बात की जा रही थी और बहुत से मुद्दों पर बात की जा रही थी, लेकिन मेयर नहीं बना आम आदमी पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी हमें समझ नहीं लग रही कि हाउस में ये मुद्दे क्यों नहीं उठा रही। सर आप देख सकते हैं पिछले हाउस मीटिंग में भी एक रेजोल्यूशन जो हमने दिया है कि जो कॉलोनियों में जो इन्होंने टैक्स लगाए हैं वो नहीं लगाने चाहिए। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी कॉलोनियों की है, जो वहां पर कमर्शियल काम कर रहे हैं, उन पर टैक्स नहीं लगाए दिए जाने चाहिए। और ये हाउस में हमने एक रेजोल्यूशन ऑलरेडी दिया है पार्षदों ने मिल करके, और ये
जो कांग्रेस का ये शुरू से इनका काम, जो ये चाचा भतीजा पार्टी परिवारवाद पार्टी है, इनका काम ही यही है कि दूसरों पर लांछन लगाना, ये कुछ कर नहीं रहे, ये कुछ कर नहीं रहे। इनके सिर्फ चंद बंदे वो एमसी दफ्तर के बाहर आकर के बैठ जाते हैं, अंदर की कार्रवाई क्या हुई है क्या नहीं इन्हें कुछ नहीं पता चलता, जबकि अंदर मेयर साहब को, इनके कमिश्नर मैम को एक रेजोल्यूशन ऑलरेडी हमारा जा चुका है और इस पे हमारी पार्टी पुरजोर कार्रवाई कर रही है और प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करा हुआ है कि ये जो टैक्स कॉलोनियों पे इन्होंने लगा दिए हैं वो नहीं लगा। यही बात की हम बात कर रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि हम जब बाहर बैठते हैं तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी का कोई समर्थन नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है इसके लिए। सर जैसे अफसरों से हमारी बातचीत चल रही है, अफसरों के पास हमारा रेजोल्यूशन चलेगा, किस बात का उनके साथ बाहर आके बैठना? अंदर तो उनके काउंसलर कुछ करते नहीं है, ना उनके काउंसलर अंदर जवाब देते हैं। जी ठीक है, हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले हमारी ये बात सुन रहे हैं तो उन्हें पता लग गया होगा कि आम आदमी पार्टी अंदर से बात करने की कोशिश करी है। ठीक है, और भाजपा से हमारे साथ एडवोकेट सौरभ जोशी जी। सौरभ जोशी जी, आपने सवाल हमारा सुना कि यही है कि जो ये टैक्स लगे हैं उसके ऊपर आपने कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी भी बात सुनी है या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनकी भी बात सुनी है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा इंडियन न्यूज चैनल ने कम से कम इस जो काफी समय से कुछ हमारे ही मित्र हैं जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं जवाब दूंगा क्योंकि मैंने पॉइंट नोट किए कि अभी तो मैं अपने कांग्रेस के जो अपने मित्र हैं हरमेल जी ने सबसे पहले शुरुआत की कि 2014 से भाजपा का मेयर है। सबसे पहले मैं उनको करेक्ट करूंगा, 2014 से नहीं 2016 से। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हैंडीकैप 2014 में आपका मेयर बन गया। हरमेल जी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बीच में नहीं काटता हूं, आप बात कीजिए। 2014 में आपका मेयर बन गया था। आप चलिए, आप बात में कीजिएगा, आप मुझे बोलने दीजिए, फिर करते हैं बात, फिर करते हैं। नहीं, मैं तो करेक्ट आपको कर रहा हूं, आपका मेयर बन गया था 2014 में। चलो आप बताओ तो 2014 में कौन बना? आप बताओ 2014 में कौन बना? अब आप इस बात पे आ जाएं। अब बहस का मुद्दा हम बदलते हैं, हम जनरल नॉलेज की तरफ आते हैं, इतिहास की तरफ आते हैं कि 2014 में कौन बना था मेयर। अब आप ये बताएं हरमेल जी, अगर आज आप इस पे बहस करना चाहते हैं तो आप बताइए, आप क्या बात कर रहे हैं? आपने हरमेल जी इतने बड़े नेता हैं, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप ऐसे ना करें। मैं फैक्ट्स में, आपको पता है सौरभ कभी गलत नहीं होता है, ऐसे नहीं बोलिए आप। हमारा लास्ट ईयर में बना, अरुण सूद जी बने 2016 में, ठीक है? तो आप इसको बहस को मत कीजिए, ठीक है? इससे बहस ठीक है, 2016 में। वैसे हरमेल जी हमारे मित्र भी है, वकील भी है सो इनको हम माफ करते हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि ये प्रवक्ता भी हैं उसके, तो इनको तो बात रखनी है इस मामले में। मैं इतिहास के पन्नों पे जाऊंगा, कॉरपोरेशन के इतिहास चंडीगढ़ में, कि ये प्रॉपर्टी टैक्स कब लगा। और मैं अभी वक्तव्य सुन रहा था, क्योंकि उनकी पिक्चर तो नजर नहीं आ रही थी, मैं आवाज से पहचान गया था कि वो माननीय सुभाष चावला जी हैं, जो आजकल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के चंडीगढ़ प्रदेश के। जी बिल्कुल, जो बहुत बड़ी बातें प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कह रहे थे। मैं एक ही सवाल कांग्रेस पार्टी के लोगों से करना चाहूंगा कि ये प्रॉपर्टी टैक्स किसने शहर पर थोपा था और क्यों थोपा गया था, और जिन्होंने थोपा है आज वो यहां पर आकर वक्तव्य दे रहे हैं। क्या वक्तव्य दे रहे हैं कि वो इतना रेट कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा? तो मुझे लगता है अगर आपके मेयर आज हैं तो आप क्या कर रहे हो? उन्होंने तो थोपा था, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, आपकी पार्टी उसको बढ़ावा दे रही है। जी ठीक है सौरभ रमन जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों से कि मुझे बात रखने दीजिए। अभी तो मैं आप पे तो आया ही नहीं, आपकी तो बात अभी मैं कर नहीं रहा हूं, पहले मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप पे भी आऊंगा सो फिर बाद में करेंगे जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चंडीगढ़ के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जब वो मेयर थे और उस समय यहां के एडमिनिस्ट्रेटर थे हमारे शिवराज पाटिल जी। अब शिवराज पाटिल जी को वो विन ओवर करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ग्रांट इन एड जो है इस मुद्दे पे वो हमारी मदद करेंगे। और उन्होंने एक शर्त चावला जी के पास रख दी कि आप किसी तरीके से यहां प्रॉपर्टी टैक्स शहर पे लगाएं और मैं आपको ग्रांट इन दिलवाऊंगा। भाई साहब, आप हैरान होंगे, प्रॉपर्टी टैक्स जब ये थोपा जा रहा था तो हमने इसका पुरजोर विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने, हर एक पार्षद ने, और उस समय चावला साहब को बोला था, चावला साहब जहां भी जिस शहर में कॉर्पोरेशन में प्रॉपर्टी टैक्स लगा है वहां पे रेट बढ़ते हैं, क्योंकि उस पे लिखा गया है कि हर साल जो आप देखिए इनकम टैक्स की स्लैब्स है, वो 1980 में क्या थी, 1990 में क्या है और 2000 में क्या है, वो स्लैब्स बढ़ती हैं।
हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती है। तो हमने उनको कहा था कि ये थोपे मत, जब तक ये बंद पड़ा है इसको बंद रहने दीजिए। लेकिन उन्होंने एक बात हमसे कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उस समय मैं भी पार्षद था, 2011-16 की बात है, उस समय मैं उस पार्षद था, और मैंने ही कहा था कि आप कमिटमेंट करें एज मेयर कि ये जो आप बोल रहे हैं कि ये आने वाले 20 साल तक 1 रुपया नहीं बढ़ेगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब बोलकर जा रहे हैं, तो आप इसको ऑन रिकॉर्ड लेकर आए। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं आया मुद्दा प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड। अब दूसरी बात, इन्होंने पानी के लिए मुद्दा दिया हुआ है कि पानी के रेट बढ़े हुए हैं। भाई साहब, आप हैरान होंगे कि जिन पानी की रेट की बात कर रहे हैं दोनों जने, कि सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा हुआ पानी का रेट है वो चंडीगढ़ के अंदर है। भाई साहब, अब चंडीगढ़ की जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली, ना तो कांग्रेस से ना तो आम आदमी पार्टी से। मैं कंपेरेटिव चार्ट ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, तो आप उसको नोट कीजिएगा कि देखिए अभी एट प्रेजेंट मैं उसकी बात करूंगा, जो रेट है हमारे पानी के जो बड़े हैं, जो ये बार बार कह रहे हैं बहुत बड़े हैं, 0 से 15 किलो लीटर जो है वो 3 रुपया किलो लीटर था, और ये 3 रुपया किलो लीटर चंडीगढ़ में है। आप हैरान होंगे, मोहाली में पहले यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, उस समय का रेट मैं बताऊंगा, वो था 5 रुपया किलो लीटर, जो अभी भी आम आदमी पार्टी के आने की सरकार में वो चल रहा है। और अब आप आ जाइए अपना दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली मॉडल की जो बात दुनिया भर में घुमाई जाती है, 0 से ये अप टू 20 किलो लीटर, इन्होंने 5 रुपया 27 पैसा, और उसके साथ सर्विस चार्जेस वो कहीं देश में नहीं लगे, 146 रुपया 41 पैसा लगाया। और इन्होंने क्या किया, 20 से 30, दमन जी आप बीच में मत बोलें, दमन जी आप अपनी बात कीजिएगा, पहले मुझे बोलने दीजिए। बादल साहब आप नोट करिए, मैं आपके पास आऊंगा, आप नोट का कर रेट लीजिए दिल्ली का, आप हैरान होंगे, 26 रुपया 36 पैसा, और उसके साथ जो सर्विस चार्ज जो ले रही है दिल्ली की सरकार, वो ले रही है 219 रुपया 62 पैसा, और अबव 30 किलो लीटर वहां का रेट है, आप हैरान हो जाएंगे, 43 रुपया 93 पैसे, और उस पे सर्विस चार्ज दिया जा रहा है 292 रुपए। और अब आप आ जाइए चंडीगढ़ का क्या रेट है। चंडीगढ़ का रेट देखिए, 0 से 15 किलो लीटर 3 रुपया किलो लीटर पर लीटर, 16 से 30 किलो लीटर के बीच में 6 रुपया, 31 से 60 में 12 रुपया किलो पर लीटर। अब आप बताएं, कंपेरेटिव चार्ट तो मेरे पास पड़ा है, मोहाली का रेट मैं अगर बताऊं तो आप मोहाली के रेट को देख के हिल जाएंगे। सबसे ज्यादा अगर कम रेट चल रहा है तो वो चंडीगढ़ में चल रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित सरकार है और भाजपा की सरकार है, इसलिए वो दिल्ली जैसे रेट जो यूटी होने के बावजूद वहां पे लग रहा है, केंद्र सरकार के वहां पे दखल नहीं दे सकती, क्योंकि वो जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल की सरकार है, तो वहां पे कम रेट नहीं हो पा रहे। लेकिन चंडीगढ़ में मैं आपको जो मैंने कंपेरेटिव चार्ट बोला, ये मेरा ऑन रिकॉर्ड आपको वक्तव्य दे रहा हूं। और जो ये कांग्रेस के मित्र जो बाहर बैठकर 5-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं मीडिया में देने के लिए, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, अब वोटें भी तो लेनी नहीं लेनी है एमपी के इलेक्शन में। अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि भाजपा सिर्फ 2 खानदानों के लिए काम कर रही है, वो बिजनेस के खानदान की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, क्या इस देश में कोई बिजनेसमैन इंडिया का नाम खड़ा करता है, उसको आप डिग्रेड करते हैं? अगर आपको बाहर से कोई डील करनी होती है जहां पर आप दलाली करते थे, कितनी दलाली इन्होंने उस समय पे की है, 1 लाख करोड़ रुपया, कॉमनवेल्थ गेम्स, रेल गेट, इतनी दलाली अभी ठीक है जहाजों में सरकार ने कराई है, उतनी दलाली हमने नहीं ली है। जी राफेल में भी सिर्फ एक परिवार का ध्यान, महंगे दाम पर जहाज खरीदे हैं, ठीक है जोशी जी। कांग्रेस जी, केसरी जी आपके ऊपर ये इल्जाम लगे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं केसरी जी। सरकार ने वो दलाली पाई है, वो राफेल के महंगे जहाज खरीद कर एक भी करप्शन का चार्ज, और देखिए और उस जहाज बनाने का जोशी जी एक मिनट दीजिए अंबानी को, जोशी जी एक मिनट दीजिए, साइकिल बनाने का भी देश की सरकार नहीं है, जोशी जी एक मिनट दीजिए, जोशी जी एक मिनट दीजिए। उस कंपनी को 2024 के इलेक्शन में फिर भाजपा आ रही है, मोदी जी फिर सरकार बना रहे हैं, और मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जी ठीक है जोशी जी ठीक है। केसरी जी थोड़े शब्दों में आप अपनी बात कहिए जी। चिंता ना करें, गांधी परिवार को नहीं आने देंगे, गांधी परिवार को अब कोई पसंद नहीं करता, जी जोशी जी ठीक है। सिलेंडर योजना गरीबों के घर घर भेजी।
हेलो, कोरोना काल बात में कर रहे हैं गरीबों को किसानों की। सारा का सारा जिनसे राशन की आज बात का कीजिए। कोरोना काल खत्म हो ठीक है, चुका ठीक है, है, जोशी लेकिन जी, राशन केसरी जी। और राशन हमारे गरीब परिवार के घर तक और पहुंच आज रहा बात है, करते हैं क्योंकि हमने 2024 बीच में जी जी वो कहते थे ना इनके प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी, मैं 1 रुपया भेजता हूं नीचे 10 पैसा पहुंचता है, लेकिन अब 1 रुपया ऊपर से चलता है तो 101 रुपया खाते में पहुंचता है, क्योंकि वहां पर एक सब्सिडी नहीं लाखों सब्सिडियां एक गरीब आदमी के उसमें पहुंच रही हैं। जी जी, और ठीक है। आपको अब तो सोचना चाहिए, यूपी देखिए, जी, जी। कहते हैं यूपी जीता देश जीता। जोशी आप जोशी तेलंगाना जी, जोशी जी अब सवाल ले लें, जोशी जी सवाल ले लें, बाकी भी सवाल ले लें। हाँ, बादल साहब तुसी की कहना चाहते हो बादल साहब? और यूपी के इतिहास में पहली बार हुआ कि जोशी कभी जी, केसरी जी। दूसरी चार्ट का विवरण दे दीजिए, सिलेंडर क्या रेट था 2013 में और आज। जोशी जी, केसरी जी, थोड़ा सवाल लें हम, और भी सवाल लें। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दमनप्रीत बादल भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनका भी सवाल है। जी दमनप्रीत जी, आप क्या कहना चाहते हो? आप कुछ कह रहे हो लेकिन सबकी आवाज बीच में मिक्स हो रही है, समझ नहीं लग रही। दमन अपने जी, जेब नहीं भरती, लोगों की जोशी जेबों तो भरती है, आपके सामने वेरवा लोगों लेकर के की आए जेबें भरती है। ये रेट पानी है, के हमारे मुद्दे पे ये बताएं रेट कि पानी मॉडल दिल्ली की में बात। महंगा क्यों है, जोशी पानी जी, पंजाब में महंगा सरकार के क्यों है, चंडीगढ़ साथ से जोशी ज्यादा? जी, उससे आप जवाब नहीं देंगे। जोशी जी, आपकी आप बात जो सुनिए, अब आप कहते हैं, बात उसकी- सुनिए ना सबकी। जिसका जवाब नहीं है आपके पास। जी ठीक है, ठीक है जोशी जी, आप तो भी बात अगर सुनिए, हम वो हाउस कुछ में कहना चाहते हैं। पानी फ्री देने का मुद्दा लेकर के आए थे, एजेंडा लेकर के आए थे, तो इनकी मेयर साहब ने एक्सेप्ट दिल्ली में करो ना, दिल्ली में करो ना, क्यों दिल्ली में महंगा किया है? पंजाब में आपको बहुत तो दिया मोहाली का, करके दिखाओ ना, मुफ्त करो कर रहे पूरा का पूरा। ये क्यों पंजाब में वाइट वॉश करते हो? बहुत- वो और ये 300 आपको भी पता है। अभी भी बिजली का पता है आपको? बिजली में क्या हो रहा है? पखियां लेके घूम रहे हैं लोग। का तो वो चंडीगढ़ अब में बिजली नहीं आपने होती। क्या आप कहते हैं जी अब इंडस्ट्री को भी बिजली नहीं देंगे, ना शनिवार को ना रविवार को। आगे जोशी जी, अगर 300 यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद नहीं देंगे। जोशी जी, दमन जी, लोग क्या करोड़ की 300 जोशी जी, दमन जी, वोट दी थी? जोशी जी, लोगों ने दमन जी, वोट दी थी। आपकी पूरी बात की नहीं पूरी समझ पा रहे बिजली- लोग। आप बीच में बोल रहे हैं तो बात नहीं समझ पा रहे, इसलिए आप एक एक करके क्वेश्चन ले तो हमारी बात समझ लगेगी सबको। हम बीच में अगर एक दूसरे का सवाल काटेंगे तो बात समझ नहीं लगेगी, बात नहीं समझ लगेगी। मेरा सवाल सौरभ जोशी जी, आप 2 मिनट दीजिए, इन बाकी सबका भी सवाल लेंगे। हरमेल केसरी जी, आपके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, अब जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, उसके ऊपर जो आप बात कर रहे हो, उसके लिए और आज आप पानी लोग के रेट अपना आपने काम बढ़ा करें, दिए हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। आप जोशी इलेक्शन जी, से देश पहले की रेट चिंता कम कर कर रहे हैं, देते हो, हम ना इलेक्शन गबन के कर रहे हैं, बाद ना आप भ्रष्टाचार कर रहे आपका हैं। जो आप पार्टी देखिए का आज दाम डिबेट दिखाने किस के पे हो और रही खाने है। के और है। 8 साल में आप बात कर रहे एक हो। भी किसी ने बोला भ्रष्टाचार किया किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने? किसी ने नहीं किया। A to Z और देखिए भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी अपने मिनिस्टरों को निकाल रही है। हाल देखिए, आप बताओ कि भारतीय आप ऐसे जनता पार्टी में अभी तक ये बात आपके आई है बाद कहीं? हमारे वाले तो निकाल रहे हैं, किसी मीडिया मोदी वाले जी के पास आने नहीं वाले पहुंचा। हैं। ठीक है, जोशी आप जी, भी ठीक आइए, है। मैं तो कहता ऑपोजिशन हूँ आ जाओ, देरी मत भगवान करो। साहब ने खुद ही उनको हरमेल बाहर जी, निकाल दिया, दमन जी, खुद ही मेरा बाहर आपको निकाल न्योता दिया। है, जोशी अपने वाले जी, तो के जोशी साथ जी, जुड़िए, जोशी जी, अपने पैसे ले देश को लेते हैं। बचाइए और ये देश देश को को हम मिलकर बचा रहे बनाते हैं हम सब ये मिलके। जो भ्रष्टाचार का जोशी जी, भ्रष्टाचार का 2024 जोशी जी, 2 मिनट अरविंद दीजिए। केजरीवाल है। आप जोशी जी, 2 स्वराज मिनट में दीजिए। दीजिए, 2024 की पता बात चल कर रहा हूँ जाएगा। सीधा। जोशी जी, भारतीय 2 जनता मिनट पार्टी दीजिए। आ रही है, मेरा न्योता आप दोनों को आइए जी, भारतीय जी, जनता पार्टी ठीक है, जोशी जी, देश जो- की 2024 सेवा ठीक है। करें। आप भी करेंगे, अब हम अपना भी हिमाचली करेंगे, सब लोग मिलकर इस देश को ऊपर दमन पहुंचाएंगे। जी, अब जोशी जी, ऊपर टाइम गली दीजिए पे 2 डालो। मिनट। एक सवाल हरमेल सिलेंडर के केसरी जी रेट से आज लेना है। कितने करते हैं? आज घर में आज सिलेंडर, वो गंदगी आम के नागरिक पन्ने अपने घर बंद में हो गए, सिलेंडर नहीं भरवा सबका सकता। अभियान चल बात रहा कर रहे हो अब तो ठीक है, मेरा ठीक है। आपसे अनुरोध आज है, अपने हरमेल घर में केसरी तेल जी, नहीं आप भरवा सुन सकता, पा रहे हैं बात मुझे? कर रहे हो मोदी जी। केसरी जी, आप सुन छोड़िए, पा रहे हैं मुझे? इन लोगों को आप छोड़ अपना दें। हिमाचल बचाओ पहले, हिमाचल जी, और ठीक यहाँ है। पर देखिए नितिन गडकरी जैसा व्यक्ति, अमित शाह जी जैसा व्यक्ति जो मंडल अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, सोचिए। मोदी जी एक गरीब परिवार का लड़का, चाय बेचने का, अमित देश का शाह तड़ी पार, अमित शाह तड़ी पार, तो उसके प्रदेश से उत्तर दिया था अमित शाह तड़ी पार। आज देश का गृह मंत्री है, ये हमारे देश की सबसे बड़ा, हमारे देश की दुखती रह गया ये कि आज एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री है। आज एक तड़ी पार पूरे देश में अपना हुक्म चला रहा है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज एक तड़ी पार को देश का गृह मंत्री हमें देखना पड़ रहा है। ये हमारे देश का सबसे बुरे दिन है हमारे जी, देश के। ठीक है। और हमारे साथ आज कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे हरमेल केसरी जी, आपका धन्यवाद है। बीजेपी से एडवोकेट सौरभ जोशी, आपका धन्यवाद है। आम आदमी पार्टी से
दमनप्रीत बादल, आप समय की कमी के कारण हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप इस डिबेट में जुड़े और आपने अपनी बात रखी, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है जिसके ऊपर आज हमने इंडिया न्यूज़ पंजाब पर बात की है। और हमारी कोशिश थी कि इस मुद्दे के ऊपर सभी पार्टियों का जो पक्ष है वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट जरूर किया जा रहा था, लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि आम आदमी पार्टी जो मेयर की सीट से पहले तक ये बात कर रही थी, अगर हमारा मेयर बनेगा तो हम चंडीगढ़ के लिए बेहतर काम करेंगे, कि उनकी तरफ से क्या काम किए जा रहे थे। या बात करें भाजपा की, जिसका मेयर है चंडीगढ़ में, उनकी तरफ से क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। सो सभी पार्टियों का हम एक पक्ष लेना चाहते थे। तो आज सभी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े थे, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ जुड़ के अपना जो पक्ष है वो हमारे सामने रखा है। और खबरें देखने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।